Hello everyone, welcome to Edosoft. So today we are going to start on a very new topic that is SQL, a structured query language. So before starting on this topic, I want to tell you this one thing that we have courses on Python libraries which covers NumPy, Pandas, NLTK and OpenCV, on MIT App Inventor, on web development, which covers HTML, CSS, and JavaScript, and the recent one on cyber ethics and cyber security. So if you want to go through all the playlist, link is given in the description box. You can go through it. So coming back to our topic of SQL, SQL is the most used programming language in the world. If you want to learn about SQL, then this course is for you. We are going to cover SQL from basic to advanced in this course. We are going to learn every topic of SQL step by step. इस कोर्स में हम SQL को स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे. We are going to see about what is SQL, what is the definition of SQL, what is database, database क्या होते हैं, every syntax of SQL, SQL examples and the practical implementation of those examples of SQL. So coming back to our topic of SQL. So what we will going to learn in this course or in this session, that is session number 1, we will going to learn about SQL database. SQL database क्या होते हैं? Creating database. हम database को कैसे create कर सकते हैं? SQL create table statement. This create table statement is used to create a table, insert into clause. It is used to insert data into table, select clause, from clause, where clause, modifying and updating data into database. And the last one is delete clause. So first of all, what we need to understand? We need to understand what is database. Database क्या होता है? It is an organized collection of data. जब हम किसी डेटा को एक organized form में अपने पास रखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं. इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? अगर हम किसी डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख रहे हैं, तो हम उस डेटा को क्यों उस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख रहे हैं? हम अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी तो डेटा अपने पास रख सकते हैं? नो. बिकॉज क्या होता है कि जब भी आप कोई डेटा को एक्सेस करते हो, तो अगर आपका डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, तो आपके लिए काफी सिंपल हो जाता है उस डेटा को एक्सेस करना, क्योंकि डेटा हमारे पास एक दो डेटा नहीं होता. We have thousands of data with us. So it creates or it becomes more simple to access data when the data is stored in an organized form with us. So coming to our topic of SQL, we need to understand what is SQL. SQL stands for Structured Query Language. It is used for managing and retrieving data in RDBMS. RDBMS क्या होता है? It stands for Relational Database Management System. So SQL provides unique way to interact with database. We can perform tasks such as inserting, deleting, and updating data. Coming to next one. SQL is supported by various database systems, including MySQL, SQL Server, MS Access, and Oracle. SQL is primarily used for storing, creating and managing database to store data. Second one is manipulating, retrieving, updating, and deleting data within databases. And number third is querying, writing queries to extract specific information from database. तो हम SQL का क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज यूज टू स्टोर डेटा. हमको क्या करना होता है? एक डेटाबेस बनाना होगा और उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई भी अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसमें उस डेटा को मैनेज कर सकते हैं. नंबर सेकंड, इट इज यूज टू मैनिपुलेट आवर डेटा. हम किसी भी डेटा को, जो हमारे डेटाबेस के अंदर जो डेटा हमने फॉर्म किया है, हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. नंबर थर्ड इज क्यूरीज. अगर हमें हमारे डेटाबेस से कोई भी एक स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्यूरीज को परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ coming to our next topic of how we can create a database. So SQL database is the collection of tables that stores a specific set of structured data. अब ये database क्या होता है? Database is the collection of data, the collection of organized data.
अब ये क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स, टेबल्स का कलेक्शन होता है जिसमें हम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करते हैं। ईच टेबल कंटेन्स कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, हर एक टेबल में आपके पास रो होती है एंड कॉलम होती है। एसक्यूएल में जो हमारे पास रोज होती हैं उनको हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। कॉलम्स क्या होती हैं? जो आपका वर्टिकल इंफॉर्मेशन है या जो आपका वर्टिकल डेटा है हम उसको कॉलम बोलते हैं, एंड रोज आर दी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द टेबल। Coming to next one, how we can create table, or we can say how we can create database. So SQL create table statement is used to create a database table. We use this table to store records and data. तो हमारा क्या सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल का? We have three important things in it. Number one is table name, the table you want to create. Column, the name of a column in the table, and the third one is data type, data, or we can say type of data that the column can hold. So क्रिएट टेबल सिंटेक्स में हमारे पास तीन सिंटेक्स होते हैं। नंबर वन, आपका जो भी टेबल का नाम है जिसपे आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो। नंबर सेकंड, आपके कॉलम का नाम क्या होगा एंड उस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटाबेस एंड द एसक्यूएल. नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. नाउ कमिंग टू इंस्टॉलेशन पार्ट, हम एसक्यूएल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके सिस्टम में कोई भी सर्च इंजन है, आप वहां पे जाइए एंड व्हाट यू हैव टू टाइप एसक्यूएल डाउनलोड, एंड जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफी ऑप्शंस आ गए। माई एसक्यूएल डाउनलोड, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी एसक्यूएल डाउनलोडेड है, आप यहाँ से एसक्यूएल अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने पे वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, सो प्लीज रिमेंबर दिस पासवर्ड। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू गो टू आवर सिस्टम सर्च एंड हियर व्हाट वी हैव टू टाइप माई एसक्यूएल। उसके बाद आपको माई एसक्यूएल कमांड लाइन जो आपका है वो आपके पास इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंटर पासवर्ड, सो यू हैव टू एंटर द पासवर्ड विच यू हैव क्रिएटेड व्हाइल इंस्टॉलिंग। इंस्टॉल करते टाइम जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो माई पासवर्ड इज दिस, एंड उसके बाद आपको यहाँ से एंटर कर देना है। सो दिस इज योर एसक्यूएल विंडो एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस सर्वर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू सी कि हमारे एसक्यूएल में कितने डेटाबेसेस अभी प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, what we have to write show database. After this what we have to do, we have to press enter, and यहाँ पे जो भी आपकी डेटाबेस की लिस्ट है वो आपके पास आ चुकी है। माई एसक्यूएल इंफॉर्मेशन स्कीमा स्कूल डीबी, तो स्कूल डीबी एक डेटाबेस था जो मैंने क्रिएट किया था। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमें ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है अगर मुझे इसको क्लियर करना है तो उसके लिए मुझे क्या टाइप करना होगा, आई हैव टू टाइप सिस्टम CLS लाइक दिस, एंड जो आपकी स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू आवर डेटाबेस टॉपिक, अब हमें क्या यहाँ से करना है, हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अभी हम क्या है, अभी हम एक कॉमन एरिया में काम कर रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस में काम करेंगे। तो हमें किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या सिंटेक्स होता है हम वो देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए व्हाट वी हैव टू राइट क्रिएट डेटाबेस, एंड वी हैव टू गिव द डेटाबेस नेम। जो भी हम डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं हमें वो नाम यहाँ पे देना होगा। जैसे कि मैं डेटाबेस का नाम रखना चाहती हूँ कस्टमर, सो आई हैव टू गिव द नेम लाइक कस्टमर डीबी, क्रिएट डेटाबेस कस्टमर डीबी, एंड आई हैव टू पुट सेमीकोलन ओवर हियर एंड आई हैव टू प्रेस एंटर। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि डेटाबेस देखना कि क्या मेरा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है या अभी मेरा डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है। सो लेट्स सी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टमर डीबी, तो आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम जो हमारा डेटाबेस हमने अभी क्रिएट किया है कस्टमर डीबी, हम इसके अंदर काम करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या सिंटेक्स देना होगा, हमें सिंटेक्स यहाँ पे देना होगा यूज customer database like this, and we have to put semicolon and we have to press enter। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका जो आउटपुट आया है वो क्या आया है, डेटाबेस चेंज्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हम एक कॉमन डेटाबेस में काम कर रहे थे, अब हम एक कॉमन डेटाबेस से एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब हमारा जो भी काम होगा वो किसके अंडर होगा, एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंडर होगा, जो कि हमने क्रिएट किया था क्रिएट डेटाबेस सिंटेक्स के थ्रू। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर कोई डेटा अवेलेबल है या नहीं। हम अपने डेटाबेस को एज एन आउटपुट में शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वी हैव टू राइट सेलेक्ट डेटाबेस and then what we have to do, we have to put semicolon and then we have to put enter। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका डेटाबेस क्या है, कस्टमर डीबी अभी आपका डेटाबेस है और इसके अंदर अभी आपका कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम सिस्टम CLS क्लियर कर देते हैं एक बार, तो ऊपर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी डेटा होता है वो एक टेबल की फॉर्म में होता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज करना है, लाइक दिस क्रिएट टेबल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द नेम ऑफ द टेबल आई वांट टू क्रिएट। तो मैं क्या नाम देना चाहती हूँ, मैं कस्टमर ही नाम देना चाहती हूँ। उसके बाद व्हाट आई हैव टू गिव, आई हैव टू गिव द वैल्यूज, और वी कैन से आई हैव टू गिव द कॉलम नेम। सो मैं कितने कॉलम्स रखना चाहती हूँ अपने टेबल में, मुझे कॉलम का नाम देना होगा। एंड व्हाट आई हैव टू गिव, आई हैव टू गिव द data type of the column name। So suppose the first column I want to create is ID, and for ID my data type is int, like this। After this what I want to create another table name, that is sorry, I want to create another column name, that is name। एंड इसका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, इसका डेटा टाइप होगा var, that is variable character। and in this I want to put 100 characters like this। After this I want to create another data name, that is city, like this। and here also I want to put variable character like 100, like this। After this what I want to another column name, that is order number। so I have to write order number like this। and इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप int होगा। and after this what I want another column name like order type। एंड इसका डेटा टाइप क्या होगा, सेम, इसका डेटा टाइप में वेरिएबल कैरेक्टर रखना चाहती हूँ। एंड इन दिस व्हाट आई वांट 100 कैरेक्टर्स इन दिस। तो इससे हमारा क्या हुआ कि जो भी मेरी टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। एंड हियर क्यूरी ओके, जो मेरी टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। एंड नाउ व्हाट आई वांट अगेन to write syntax like create select database and then like this। तो क्या है कि जो मेरा डेटाबेस है वो कस्टमर डीबी है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, कॉलम को क्रिएट कर दिया है। अब मैं कैसे चेक कर सकती हूँ कि जो मैंने टेबल को क्रिएट किया है वो टेबल मैंने सही क्रिएट किया या सही क्रिएट नहीं किया। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना होता है, सिंटेक्स, वी हैव टू यूज description, that is disk। and after this what I have to do, I have to write my column name, sorry, I have to write my table name, that is customer। and what we have to do, put semicolon and enter। तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी टेबल है वो आपके सामने आउटपुट में आ चुकी है। वी हैव आईडी, वी हैव नेम, आईडी का टाइप क्या है, इंट, नेम वेरिएबल कैरेक्टर विद 100 कैरेक्टर्स, सिटी वेरिएबल कैरेक्टर विद 100 कैरेक्टर्स, ऑर्डर नंबर इज इंट, ऑर्डर टाइप इज दिस। तो हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया कि जो भी हमने टेबल क्रिएट की है क्या वो क्रिएट हो चुकी है।
एंड अभी क्या है कि अभी हमने उसके अंदर कोई भी वैल्यूज है, कोई भी हमने डेटा को इंसर्ट नहीं किया है। अभी सिर्फ हमने क्या किया है, एक टेबल का सिंटेक्स क्रिएट किया है कि जो टेबल में कितने कॉलम्स होने चाहिए और कितने रिकॉर्ड्स होने चाहिए। रिकॉर्ड्स अभी हमने मेंशन नहीं किए, कॉलम्स कितने होने चाहिए। वी हैव 5 कॉलम्स इन आवर टेबल बाय नेम, आईडी, नेम, सिटी, ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर टाइप। अब हमें क्या सीखना है, नाउ वी हैव टू लर्न कि हम टेबल के अंदर डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सा सिंटेक्स यूज करना होगा, वी हैव टू यूज इंसर्ट इनटू सिंटेक्स। So what we have to write, we have to write syntax like insert into. And after this, what we have to do, we have to write our table name, that is customer. एंड उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा कॉलम नेम है हमें वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले हमारा हमारा कॉलम क्या था, आईडी, एंड उसके बाद हमारा कॉलम नेम क्या है, नेम, एंड देन वी हैव सिटी, एंड आफ्टर दिस व्हाट वी हैव ऑर्डर नंबर, एंड आफ्टर दिस व्हाट वी हैव ऑर्डर टाइप, like this. And what we have to do, we have to press enter. And हमने क्या किया, हम सेम उसमें एक न्यू लाइन में आ गए। after this what we have to do, after this we have to mention values, and for values what we have to do, we have to write। अब हमारा आईडी क्या था, आईडी हमारा जो डेटा टाइप था आईडी का वो इंट था। सो आईडी नंबर क्या होगा, लेट्स से आई वांट माय आईडी नंबर इज 104। उसके बाद हमारा नेम है, सो आई वांट नेम इज लाइक सुमित। एंड आफ्टर दिस व्हाट इज सिटी, सो आई वांट सिटी इज आगरा, लाइक दिस। एंड आफ्टर दिस व्हाट वी हैव ऑर्डर नंबर, सो आई वांट माय ऑर्डर नंबर लाइक 11121। And after this what we have order type, so I have to give order type like bags, like this. And we have to close this and put a semicolon over here, and we have to press enter। and here you can see query okay। now अब मैं क्या देखना चाहती हूँ, अब मैंने क्या किया कि मैंने एक डेटा को अपने टेबल में इंसर्ट कराया है। अब इंसर्ट इनटू जो आपका सिंटेक्स है उसे हम काफी फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने मेंशन किया कॉलम नेम, जैसे कि आईडी, नेम, सिटी, ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर टाइप। उसके बाद हमने पर्टिकुलर वैल्यूज मेंशन किए। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप वैल्यूज को एक सेम वे में मेंशन कर रहे हो, जैसे कि आपका कॉलम नेम्स मेंशन है, तो आपको कॉलम नेम्स मेंशन करने की कोई भी नीड नहीं होती है, आप डायरेक्ट वैल्यूज को मेंशन कर सकते हो। लाइकवाइज इंसर्ट into, and after this what we have to do, we have to write customer, and after customer what we have to do, we have to press enter। and here you can write values, एंड आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज को एंटर करा सकते हो अगर आप सेम सीक्वेंस में एंटर कर रहे हो वैल्यूज को। जैसे कि मैं वैल्यूज को एंटर कराती हूँ, सबसे पहले 110, दैट इज द आईडी, एंड आफ्टर दिस आई वांट माय नेम एज नेहा। after this what we have to do, we have to write city name like Raipur। and after this what we have to do, we have to write order number, so the order number being like 141। and after this what we have to do, we have to write order type, so order type is like chairs, like this। and what we have to do, we have to सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, क्यूरी ओके। तो जो आपने इंसर्ट किया है डेटा वो आप इस फॉर्म में भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप कस्टमर के जो कॉलम नेम है आप उसको मेंशन करके डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आपको सेम सीक्वेंस में डेटा को एंटर कराना है तो आप विदाउट कस्टमर में जो टेबल नेम है या कॉलम नेम है आप उसको मेंशन किए बिना डायरेक्ट वैल्यूज को भी मेंशन कर सकते हैं। थर्ड वे हमारा क्या होता है, इंसर्ट इनटू सिंटेक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इंसर्ट इनटू, and after this what we have customer, like this। and what I have to do, I have to press enter, and then what we have to mention values over here।
So if I want to mention values like 142, then I want to mention name as Rahul. And then what we have to mention city. So I want to mention city as Ghaziabad. And then what we have to do, I want to mention order number, or we can say, yeah, order number. So order number is like 156. And after this, what we have to mention, order type. So I want to mention order type. And what we have to do, we have to like this. So we have to close the first value जो भी हमारा syntax है, and then what we can give the other values in the same syntax. Values में अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड की सारी वैल्यूज हमने दी है. अब हम क्या कर सकते हैं, एक ही साथ हम काफी वैल्यूज को या काफी डेटा को एंटर कर सकते हैं. अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इसमें दूसरा डेटा भी एंटर कर सकती हूँ. लाइक आई वांट टू एंटर 167. And after this, I want to enter name as Monica. We have to enter city. So I want to enter city as Noida. And then what we have to do, we have to enter order number. So I want to enter order number as 9834. And after this, what we have to do, we have to enter order type. So I want to enter order type like blankets. And after this, what we have to do, we have to press एंटर सेमीकोलन एंड देन एंटर. तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्यूरी ओके, 2 रोज अफेक्टेड, रिकॉर्ड्स 2. तो हमने कितने रिकॉर्ड्स एक साथ एंटर किए हैं, हमने 2 रिकॉर्ड्स एक साथ एंटर किए. ऐसे ही आप काफी रिकॉर्ड्स या काफी डेटा को आप एंटर करा सकते हैं. तो ये हमारा 3 वे में, यानी हम जो इंसर्ट इनटू हमारा सिंटेक्स है उसे हम 3 वेज में यूज कर सकते हैं. अगर आप पर्टिकुलर कॉलम नेम्स को मेंशन करके यूज कर रहे हैं, आईडी, नेम, सिटी, ऑर्डर नंबर, तो उनकी जो वैल्यूज हैं आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही एंटर करानी है. अगर आप कॉलम नेम को मेंशन नहीं कर रहे हैं तो जिस वे में आपने डेटाबेस में या टेबल में कॉलम्स को क्रिएट किया है, आप वैसे ही यहाँ पे डेटा को या वैल्यूज को एंटर करा सकते हैं. थर्ड हमारा क्या है कि हम एक साथ काफी डेटा को एंटर एक साथ करा सकते हैं. So now what we have to do, let's clear our screen. So what we have to do, we have to write system cls and we have to press enter. Now अब हमें क्या करना है कि जो भी हमने टेबल को क्रिएट किया है, क्या हम उस टेबल को शो कर सकते हैं, क्या हम उस टेबल का सारी जो भी हमारी डेटा है उसको हम शो कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं. यस. व्हाट वी हैव टू यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. तो हमें उससे क्या होता है, उससे जो भी आपका जितना भी डेटा है, सारा डेटा आपके पास आपके आउटपुट में आ जाता है. सो व्हाट वी हैव टू राइट सेलेक्ट एंड देन लाइक दिस फ्रॉम एंड टेबल नेम. तो टेबल नेम हमारा क्या था, हमारा टेबल नेम था कस्टमर, लाइक दिस. एंड व्हाट वी हैव टू डू, प्रेस एंटर ओवर हियर लाइक दिस. एंड जो भी आपका आउटपुट है वो आपके सामने आ गया है. आईडी 104 110 142 167. वी हैव नेम्स, वी हैव सिटी एंड वी हैव ऑर्डर नंबर एंड वी हैव ऑर्डर टाइप. तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर से क्या होता है कि आपकी टेबल के अंदर जितना भी डेटा है, यानी सारा डेटा आपके पास आपके आउटपुट में आ जाता है. तो इससे क्या है कि हम कोई भी डेटा को एज एन आउटपुट में शो कर सकते हैं. व्हाट सिंटेक्स वी हैव टू यूज दिस सिंटेक्स ओवर हियर. सेकेंड हमारे पास जो सिंटेक्स है जिसको हम आज सीखेंगे वो है फ्रॉम क्लॉज. तो हम फ्रॉम क्लॉज का कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें एक पर्टिकुलर कॉलम को हमारे आउटपुट में देखना है तो हम फ्रॉम क्लॉज का यूज कर सकते हैं लाइक दिस. नाउ सेलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम, जैसे कि आई वांट टू सी नेम, सेलेक्ट नेम एंड आई हैव टू मेंशन फ्रॉम कस्टमर. तो इससे क्या होगा, इससे जो मेरी कस्टमर की टेबल है उससे एक पर्टिकुलर कॉलम, जो कॉलम का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो मेरे आउटपुट में आ जाएगा लाइक दिस. तो मेरे आउटपुट में क्या हुआ कि मैंने पर्टिकुलर टेबल का, यानी पर्टिकुलर डेटा एक पर्टिकुलर टेबल का मेरे आउटपुट में शो हो गया. ऐसे ही मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे अभी हमने क्या किया है, एक ही कॉलम को मेरे आउटपुट में शो किया है. अब मैं क्या कर सकती हूँ, एक साथ में काफी कॉलम शो कर सकती हूँ लाइक आईडी कॉमा and we name from customer semicolon and we have to press enter like this. तो उससे क्या हुआ कि अब आपके पास 2 कॉलम्स आपके आउटपुट में शो हो रहे हैं, नंबर 1 आईडी, नंबर 2 नेम.
तो इस तरह से आप फ्रॉम क्लॉज का यूज कर सकते हैं। अगर आपको जितना भी आपका डेटा है ओवरऑल सारा डेटा आपके आउटपुट में आपको शो करना है तो आप सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर कर देंगे। अगर आपको एक पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स आपके आउटपुट में शो कराने हैं तो आप उन कॉलम्स का जो भी नेम है आप उसको मेंशन कर सकते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, or we can say select ID and name from customer. So this is all about today's session. If you have any doubt in this session, you can ask me. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.